Hello students, I hope you are understanding what we are teaching in spoken English. So after 15 days, you must have got basic idea of how to approach root words, how to understand the basics of English spoken and grammatical mistakes you were doing. So today we'll be talking some basic things first. So you have to understand how the doctors write. This is very new thing. So TAB tablet everyone understands. AC AC what does AC mean? Whenever you see जब भी आप देखते हो डॉक्टर्स क्या लिखते हैं. So when they write AC इसका मतलब होता है खाने से पहले. BID when they write bid it means दिन में दो बार meaning 2 times a day. And when they write TID then it means दिन में 3 बार. And when they write SOS उसका मतलब क्या होता है? जरूरत अनुसार जितनी भी नीड हो उसके हिसाब से. GTT क्या मतलब क्या होता है? बूंदे. So you might be finding difficulty in understanding what they write the doctors. So it is you have to note down somewhere these words so that whenever you are reading your doctor's prescription, it will be very easy for you to understand. Okay. So these are some common mistakes which we when we talk we say. So whenever you are saying when I will arrive, I will call you. When I will arrive, I will call you. So what do you have to say? The correct sentence is when I arrive, I will call you. Okay, we will not be using will 2 times. When you say don't, she was boring in the class. So what do you have to say? The correct way is she was bored in the class. वो bored हो रही थी. Whenever you're saying where I can find a bank, you have to say where can I find a bank. And whenever you're saying I must to call him immediately, you have to say I must call him immediately. Okay. So today our main topic is prefix. We were understanding some prefix and their words starting from. So today we'll be talking about AC or ACR. It means sharp, sour, bitter. So what does word starting from AC तो उसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई वर्ड AC या फिर ACR से स्टार्ट हो रहा हो उसका मतलब होता है शार्प, तेज, सोर, खट्टा या फिर बिटर, कड़वा. So it has different interpretation in different sentences. जब भी आप different sentences यूज करोगे, जब different words होंगे उसका different interpretation होता है. So let's understand. First word is acid. तो ये acid आपने फ्रॉम द वेरी बेसिक आप लोग समझते हैं अम्ल जिसे हिंदी में कहते हैं. तो ये कैसा होता है? सोर होता है, शार्प होता है और बाइटिंग टू द टेस्ट होता है. ठीक है. एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है. सो एसिड फॉर एग्जांपल आप मैंगो यूज करते हो उसमें भी एसिड होता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स आते हैं. व्हेनेवर यू विल बी गोइंग इनटू द क्लास 10th यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. जब आपने अगर 10th क्लास में अगर पढ़ लिया है तो आपको समझ में आता होगा एसिड क्या है. एसिड, बेस एंड सॉल्ट, देयर इज वन चैप्टर इन क्लास 10. ठीक है. So this is very basic कि आप एसिड मतलब क्या हो गया? शार्प यानी कि सॉर, खट्टा. इसमें डिफरेंट वर्ड्स सेंटेंसेस आप अपने घर में फ्रेम कर सकते हो. So that taste of mango was acidic. जब लोग यूज करते एसिडिक मतलब अम्लीय है. ठीक है. एक्यूट मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल भी होता है, आपने पढ़ा होगा, मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट इट. एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट क्या होता है? एक्यूट होता है तीव्र, वेरी शार्प. उसका भी मतलब होता है characterized by sharpness मतलब तीव्रता और severity. ठीक है. So example हम आपको बताएंगे. I'll tell you the example. Acute. She was suffering from acute pain. She was suffering from acute pain. मतलब क्या हुआ? वो सफर कर रही थी, मतलब वो बीमार थी. She was suffering from किससे बीमार थी? Acute pain मतलब तीव्र, तेज पेन हो रहा था उसको, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था. Acerbic क्या होता है? उसको बोलते हैं acerbic. ACERBIC. कड़वा होता है, शार्प इन मूड और टोन. सो दैट फॉर एग्जांपल acerbic टेस्ट है ना, कड़वा टेस्ट. इसको हम लोग लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल द डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, जो डिबेट चल रही थी, इट वाज acerbic इन नेचर. वो बहुत acerbic थी. फॉर एग्जांपल
क्रिटिसाइज कर रहे हो बहुत ज्यादा किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल कभी आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो और वो किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को दे आर क्रिटिसाइजिंग, तो वी कैन यूज फ्रेम अ सेंटेंस दैट दैट पैराग्राफ वाज एकोबिक इन नेचर, ठीक है। और फोर्थ वर्ड इज एक्सैकरबेट, मतलब बिगाड़ देना। एक्सैकरबेट मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना। इसको प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्सैकरबेट, क्या बोलेंगे? एक्सैकरबेट, ठीक है। इसको बहुत बार whenever you are finding a difficulty in speaking a word, pronunciation आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। So how will you understand the pronunciation? बार बार सेम सेंटेंस को आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलिए। So what will happen? आप with the time you'll be able to pronunciate it very easily and very comfortably, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? To make more bitter or to make worse. Generally it is used in कि आप किसी चीज को बिगाड़ दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्क कर रहे थे, आप किसी ने आके उसको बिगाड़ दिया, या फिर कह रहे हैं कि द सेंटेंस इज दिस ड्रग, यानी कि ड्रग मतलब मेडिसिन, एग्रीवेट्स या फिर एक्सैकरबेट्स द पेन। तो आप देखिए कितना डिफिकल्टी होती है। एग्रीवेट्स, ठीक है, जब आप बार बार बोलते हो तो एग्रीवेट्स और एक्सैकरबेट्स का सेम मीनिंग होता है, बिगाड़ देना। द पेन मतलब उस ड्रग ने क्या किया, आपको पेन हो रहा था, आपने वो मेडिसिन खाई, उसने और क्या कर दिया? बिगाड़ दिया, और ज्यादा वो पेन होने लग गया। दैट मीन्स आप इस कहीं भी डिफरेंट आप डेली लाइफ में यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, ठीक है। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? बाइटिंग इन फीलिंग, इमोशन और मैनर। मतलब इट, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस, इट वॉज एन एक्रीमोनियस डिबेट, मतलब जो डिबेट हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक चल रहा था, वो बहुत बिटर थी, बहुत हीटेड चल रही थी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जिसमें हो रहे थे, बहुत ही इमोशनल थी। एक्रीमोनियस उसके लिए मतलब यूज करा जाएगा ना, जिसमें तेज बहुत किसी चीज को क्रिटिसाइज बहुत बुरी तरीके से किया जा रहा हो, वेरी बैडली दे आर क्रिटिसाइजिंग समवन एंड दे आर वेरी इमोशंस में बहुत बिटर, बहुत ही कड़वी है काइंड ऑफ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, जब भी अभी जैसे इंडिया चाइना का अभी हमारे जवान शहीद हुए, है ना, तो जो आपकी डिबेट्स हो रही हैं टीवी पे, वो कैसी हो रही हैं? एक्रीमोनियस डिबेट्स हो रही हैं कि हाउ कैन दे डू दिस टू अस, है ना। एक्रीमोनियस, इमोशंस, फीलिंग में बाइटिंग इन फीलिंग और इमोशन और मैनर, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। एक्यूमेन क्या होता है? एक्यूमेन का मतलब होता है शार्पनेस इन डेप्थ ऑफ परसेप्शन। मतलब सेंटेंस से समझते हैं, शी हैज कंसिडरेबल बिजनेस एक्यूमेन, मतलब समझ एक तरीके से होता है। बिजनेस बहुत बहुत अच्छा है किसी चीज में, आप बहुत तेज हो उस चीज में। फॉर एग्जाम्पल कोई जो सेल्समैन होता है, अगर बहुत अच्छे से सेल कर रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है, तो ही हैज अ वेरी गुड बिजनेस सेल्समैन एक्यूमेन। एक सेल्समैन की जो एक्यूमेन चाहिए होती है, डेप्थ ऑफ किसी भी चीज में नॉलेज चाहिए होती है, आप बहुत अच्छे से, आपको प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है, व्हाट इट हैपेंस, क्या आपको करता है। आपके घर में कभी कोई प्रोडक्ट समझाने आया कि आप जब कहीं शॉप पे जाते हो, टीवी खरीदने जाते हो, तो आपको बहुत सारे फीचर्स बताता है, बट जो बहुत अच्छे से बताता है, तो दैट्स एक्यूमेन इज देयर, उसमें बिजनेस एक्यूमेन या फिर सेल्समैन की एक्यूमेन है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज एक्रिड। इसका मतलब क्या होता है? अनप्लेजेंटली पंजेंट इन टेस्ट और ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल। फॉर एग्जाम्पल, द रूम वॉज फिल्ड विद एक्रिड स्मोक। एक्रिड मतलब अनप्लेजेंट, मतलब अच्छी नहीं थी, खराब सी, पंजेंट सी, बहुत खराब सी स्मेल थी। तो द रूम वॉज फिल्ड विद एक्रिड स्मोक, ठीक है। एक्रिड स्मोक से भरा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे टायर जलता है, whenever the tire burns, तो बहुत गंदी सी स्मेल, अनप्लेजेंट पंजेंट स्मेल आती है, तो उसको क्या बोलेंगे? The room was filled with that acrid smoke. उसी के लिए यूज किया जाता है acrid smoke. So I hope you must have understood these 7 words which I talked about. You might find more words starting from AC or ACR, which means sharpness, sour, or bitter. So the purpose of this uh, exercise is to make you aware about basic prefix so that you can make a word understand what it means. For example, अगर आपको accurate word ऐसे ही समझ दिख जाए, तो आप समझ नहीं पाओगे what it means. बट आपने जब प्रीफिक्स समझा होगा कि AC का मतलब क्या होता है, तो जब प्रीफिक्स का मतलब समझे, तो उसका मतलब रिलेटेड टू समथिंग सॉर, बिटर या शार्प से रिलेटेड होगा।
So you'll be able to understand it very easily. So students, it is very, the root words and words are, vocabulary is very important part. जब भी आप आगे भी आफ्टर 12th भी एग्जाम्स दोगे, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग के एग्जाम्स देते हो, सिविल, उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आप एग्जाम्स देते हो, उसमें भी ऑल दीज वर्ड्स आर यूज. आपके सिनोनिम्स इससे इजी हो जाता है आपको फाइंड आउट करना, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना इजी हो जाता है आपको, बहुत सारे अदर चीजों में, पैसेजेस में आपको इजी होता है कि उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इट मींस. तो इट इज वेरी इजी. तो आप क्या करो, इसको लिखते जाओ, साथ में स्टार्ट रीडिंग. आप नेट यूज करते हो, फोन यूज करते हो, आप उसमें वर्ड्स को, आप कोई भी न्यूज़पेपर देखिए, आप उसको न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़िए, आप सर्च करिए, फॉर एग्जांपल आप सर्च करिए टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप भी आती है, एप्लीकेशन भी आती है, हिंदुस्तान टाइम्स की एप्लीकेशन आती है. उस एप्लीकेशन को ओपन करके आप उसमें जो पैराग्राफ कोई पढ़िए, क्या चल रहा है ना. तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एक न्यूज़पेपर खरीदिए, आप इस न्यूज़पेपर के थ्रू, आप ई पेपर के थ्रू हिंदुस्तान खोल लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स खोल लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन आती है उसको यूज करिए, हिंदू की आती है, हिंदू की आती है, बट हिंदू इज अ बट डिफिकल्ट. तो आप इन न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स छोटे छोटे पढ़िए, एंड उसमें जो वर्ड्स नहीं आते हैं उनको एक छोटी सी नोटबुक में लिखिए, सो दैट व्हाट विल हैपन, आप जब भी, आप दोबारा बार बार पढ़ के उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, और बहुत इजी रहेगा आपको, आपके कोई भी वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड उसको समझने में. सो दैट्स एंड फॉर द टुडे. सो we'll talk new words, new prefixes in our next video. Thank you so much.